قبول ہے۔ یہ لفظ اس کے لبوں سے نہیں، اس کی انا سے یہ جملہ ادا ہوا تھا، جیسے کوئی سزا سنائی جا رہی ہو۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا، مبارک باتیں دی جا رہی تھیں۔ احسن ارشمان نے نکاح نامے پر دستخط کیے، جیسے زبردستی کسی قید کے کاغذات پر سائن کیے، پھر پلٹ کر ایک نظر نیہا کو دیکھا، جو بخوشی سے قبول کر چکی تھی۔ شام کی مدھم روشنی میں ہر گوشہ جگمگا رہا تھا۔ لال جوڑے میں لپٹی نیہا حنائی ہاتھوں کو دیکھتی، شرم و حیا سے دل میں خوابوں کا جہاں آباد کیے بیٹھی تھی۔ وہی خواب جو کسی نے بھی اپنے شریک حیات کے لیے دیکھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک باشعور اور خود اعتماد لڑکی تھی۔ اس کی خود اعتمادی ہی تو ارشمان صاحب احسن کے والد کو پسند آئی تھی، اور دوسری بات وہ ان کے جگری یار ندیم احمد کی بیٹی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح ماں باپ کی پسند کو اپنی پسند مان کر وہ اس پاک رشتے میں بندھ چکی تھی۔ ندیم احمد نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا اپنی تینوں بیٹوں کو۔ دو بہنوں کی شادی ہو گئی پہلے ہی، وہ بہنوں میں وہ تیسرے نمبر پر تھی۔ ماس کمیونیکیشن میں ماسٹر کر چکی تھی، جاب کرنے کی کبھی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ خوابوں کی طرح سب کچھ حسین تھا، مہندی کی خوشبو، ہستی سہیلیاں، تصویریں لیتا خاندان، اور دل کی گہرائیوں میں بسا نیا رشتہ۔ مبارک ہو نیہا بیٹا، تم آج سے ہماری بہو ہو۔ نیہا کی ساس زینت ارشمان۔ ساس نے ماتھے پر بوسہ دیا، نیہا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سب کو خوش دیکھ کر مطمئن تھی۔ اس کی ماں کبریٰ بیگ اسے ساتھ لگائے ڈھیروں بلائے لے چکی تھی، لیکن کہیں وہ اپنے گھر کو چھوڑ جانے پر تھوڑی دکھی بھی تھی، جبکہ دوسری طرف دلہے کا لیا دیا انداز ندیم احمد کو پریشان کر گیا تھا۔ وہ ارشمان صاحب کی طرف بڑھے۔ ارشمان، کیا یہ شادی احسن بیٹے کی مرضی سے نہیں ہوئی؟ ارشمان صاحب پہلے تو چپ ہو گئے، پھر مطمئن کرنے والے انداز میں ان سے بولے، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور مجھ پر یقین ہے نا، نیہا بیٹی کو بہو نہیں بیٹی بنا کر لے جا رہا ہوں۔ ندیم احمد مسکرا دیے، جبکہ ارشمان صاحب احسن کی طرف بڑھے تھے۔ اگر نکاح کے لیے مان ہی گئے ہو تو تھوڑا سا مسکرا بھی لو۔ وہ مہمانوں کی طرف دیکھتے مسکرا کر بولے تھے، آپ نے جو چاہا وہ میں کر چکا ہوں، اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت لگائیے بابا۔ یہ سب آپ کی ضد اور زبان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا، میری ضد ہے، وجہ نہیں۔ یہ لڑکی ہی تمہاری شریک حیات بننے کی حقدار تھی، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ احسن، اگر مجھے نیہا بیٹی کی طرف سے کسی بھی طرح کی شکایت ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا واپس بیزاری سے بیٹھ گیا تھا۔ وقت گزرا اور وہ لمحہ آ گیا جب وہ رخصت ہو کر احسن کے کمرے میں بیٹھی، شرم و حیا اور بے چینی سے گھبرا رہی تھی۔ کمرہ گلابوں سے سجا تھا، موم بتیاں جل رہی تھیں۔ نیہا دل میں دھڑکنوں کی گھنٹیاں لیے اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ چڑچڑاتے ہوئے کھلا اور احسن اندر آیا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، جیسے کوئی فیصلہ کر کے آیا ہو۔ فیصلہ تو وہ کر آیا تھا، کیونکہ اس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ نیہا نے نظریں جھکا لی، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے، کسی میٹھے بول کی نہ سہی، ایک میٹھے احساس اور کچھ روایتی وعدوں کی منتظر ضرور تھی۔ کمرے میں خاموشی برقرار دیکھتے نیہا کو عجیب لگا۔ وہ سیدھا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا، چہرے پر ناگواری تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کے لب ہلے۔ یہ رشتہ تمہارے لیے خوشی کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے صرف مجبوری ہے۔ یہ وہ جملہ نہیں تھا جس کی توقع کوئی بھی دلہن کر سکتی ہے۔ اس رات تو کچھ عہد پیما کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ نیہا نے گھونگھٹ اٹھایا، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی، جیسے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ میرے دل میں کوئی اور ہے، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اپنے گھر والوں کو پہلے ہی اپنی پسند بتا چکا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ تم چاہو تو کبھی بھی آزادی کا مطالبہ کر سکتی ہو، کیونکہ میں بہت جلد اپنی محبت اپنی حریم سے شادی کر لوں گا۔ تم صرف امی ابو کی خواہش پر میری زندگی میں آئی ہو، تمہیں دل میں جگہ دینا میرے بس میں نہیں۔ وہ اپنے دل کی بات کسی راٹو طوطے کی طرح کرتا، جانے اب کس چیز کا منتظر تھا۔ احسن ان لوگوں میں سے تھا جو دو ٹوک بات کرتے تھے، کم بولنا، سیدھی بات کرنا اور رشتوں کو اپنی مرضی سے پرکھنا، یہی اس کا طریقہ تھا۔ شاید وہ محبت میں پڑا تھا یا بس ضد میں، لیکن وہ لڑکی حریم اس کے لیے بہت خاص تھی۔ نیہا کی سانسیں رک گئی تھی، بے یقینی کی کیفیت میں وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ وہ خوبرو سا نوجوان جس کی ایک تصویر نے ہی اسے پہلی نظر میں محبت میں مبتلا کر دیا تھا، اس کی زندگی میں تو وہ کہیں نہیں تھی۔ بے شک وہ جانتی تھی محبت ایسے ہی نہیں ہو جاتی، لیکن وہ کیا کرتی؟
उसे तो हो गई थी। जितने ख्वाब वो ख्यालों में बुन चुकी थी, उनकी हकीकत उस कदर भयानक कैसे हो सकती थी। लेकिन वो चुप रही। वो उनमें से थी जो मोहब्बत छुपा लेती है, जैसे इज्जत नफ्स बचानी आती थी। वो उसे कुछ नहीं बता सकी, कैसे और कितनी मोहब्बत करने लगी थी, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं था। उसकी मोहब्बत निखरने से पहले ही मुरझाए हुए फूल का लबादा उड़ चुकी थी, बिल्कुल वैसे जैसे किताब के अंदर रखे हुए फूल, जिन्हें वक्त तो मिटा देता है मगर खुशबू बाकी रहती है। अभी तो वह नाम से ठीक तरह मानूस भी ना हुई थी कि दिल की दुनिया वीरान कर दी गई थी। वो खामोश रही, मगर आंखें बोलने लगी। उससे पहले वो कुछ बोलती या वो कुछ सुनता, मोबाइल फोन की आवाज कमरे में गूंजी। एहसन ने मोबाइल निकाला, कॉल उठाई और नेहा ने उसे कहते सुना, बेबी, यकीन करो मेरा, मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। शायद आगे कोई बात की गई थी तो वो खामोश हो गया। पागल मत बनो। हाँ, निकाह तो हो गया, पर तुम जानती हो मेरी दुल्हन तुम हो। ये सब सिर्फ खानदान की जिद थी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब तुम ही मेरी हकीकत हो, वो सिर्फ नाम की बीवी है। नेहा की समाज जख्मी हुई, लेकिन वो चुप रही। नेहा ने नजरें झुका ली, आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर होंठ अब भी बंद थे। सारी खुद एतमादी कहीं दूर जा सोई थी। इस शौक की कैफियत के जरिए असर वो कमजोर सी चालाक लड़की बनकर रहेगी, जैसे अपनी शादी अपने शोहर को खो देने का खतरा लाहक हो गया था। कमरे की फिजा में अजीब सी खामोशी थी जो चीख रही थी, और इस ही खामोशी को तवील करता एहसन जल्दी में कमरे से निकल गया। ये जाने बगैर एक साथ है जो उसके नाम पर उसकी सेज सजाए बैठी है। अगली सुबह, शायद फजर का वक्त था, जब दरवाज़ा जोर से बजा। वह चौंक कर उठी। कमरा खाली था। वो शौक है यकीनी की कैफियत में बैठे बैठे ही सो गई थी, और अब एकदम से सब याद आया। दरवाज़ा लगातार बज रहा था। वो जल्दी से उठी, दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर उसकी सास थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो परेशान लगी। नेहा का दिल मजीद घबरा गया। क्या क्या हुआ? बेटा, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। हमें अभी डेरा गाजी खान के लिए रवाना होना होगा। नेहा का दिल बंद होने को था। बाबा, बाबा ठीक हैं? क्या हुआ आंटी? मुझे सच सच बताइए आंटी। कुछ नहीं हुआ है, बस माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है। हमें अभी जाना है। एहसन कहाँ है? उसे बुलाओ। जीनत बेगम ने कमरे में एहसन की तलाश में नजर घुमाई, पर खुद ही कुछ सोच कर बोली, वॉशरूम में है क्या? मैं देखती हूँ। इससे पहले वो आगे बढ़ती, नेहा के जुमले ने उन्हें शॉक कर दिया। नहीं आंटी, वो कमरे में नहीं है। हमें चलना चाहिए। जल्दी चलिए। नजरें चुराकर वो बेचैनी से बोली। जीनत ने अब बागौर देखा था कि वह दुल्हन के लिबास में ही जाने को तैयार रोने वाली थी। बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। उन्हें जहाँ एहसन की गैर मौजूदगी ने हैरत ज़दा किया था, वहीं दूसरी तरफ नेहा की आंखें उसे किसी भी सवाल से रोक रही थी। बाबा की जान, बाबा बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक है आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते अपना। मुझे कहे हुए अभी कुछ घंटे नहीं गुजारे, और आपने अपनी हालत क्या कर ली। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। वो नदीम साहब के सीने से लगती रोती हुई बोले जा रही थी। आंखें बरस रही थी। जाने किस किस गम पर बैक वक्त। ऐसे नहीं कहते गुड़िया, अब आप किसी के घर की इज्जत हैं। इस तरह करेंगी तो कैसे चलेगा। मुझे नहीं जाना। अर्शमान साहब ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। नदीम, रहने दो, परेशान है बच्ची। 2 दिन बाद मैं एहसन को लेने भेज दूंगा। नेहा को एक बार फिर इस सितमगर की याद आई, जो इस पर अपनी मोहब्बत के इंकशाफ का पहाड़ तोड़कर जाने कहाँ चला गया था। आज 4 दिन गुजर गए थे, और नेहा को यकीन था एहसन अब उसे लेने नहीं आएगा। वो दिल ही दिल में ठान चुकी थी कि बाबा की तबीयत संभलते ही सब कुछ बता देगी, मगर उसे इस वक्त जैसे सख्ता सतारी हो गया, जब अगले ही दिन दोपहर को अचानक एहसन उसके सामने आ खड़ा हुआ, और जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा ने हाथ में मौजूद बैट एक जोरदार वार के साथ और बॉल सीधा एहसन के सर पर जा लगी। नेहा के हाथ से बैट छूट गया, और वो सकते के आलम में बस उसे देखती रह गई, जैसे उसकी मौजूदगी भी एक धचका थी, और इस हादसा नुमा इस्तकबाल ने तो जैसे क्यामत ही ढा दी हो। इसी लम्हे कुबरा बेगम लॉन में नमूदार हुई, और सूरत हाल को देखते ही नेहा पर बरस पड़ी। कितनी बार कहा है, ये बच्चों जैसे खेल कूद अब बंद करो, शादी हो गई है तुम्हारी। वो कहना चाहती थी कि उन्हीं छोटे शैतानों बच्चों के इसराओ इसरार पर वो बाहर खेलने आई थी। आनी आनी की गर्दान करते उसे जबरदस्ती मैदान में घसीट लाए थे, मगर वजाहत दिए बगैर वो खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसे किसी वजाहत से ज्यादा एहसन की मौजूदगी ने हिला कर रख दिया था। कुबरा बेगम उसके यूं खामोशी से पलट जाने पर हैरान हुई।
मगर जैसे ही उनकी नज़र अपने दामाद पर पड़ी, जो सर थामे खड़ा था, तो उनका दिल चाहा कि नेहा को 2 थप्पड़ लगा दें। या अल्लाह खैर! कुबरा बेगम के मुँह से बेख्तियार निकला। जब उन्होंने एहसन को सर थामे खड़े देखा, वो तेज़ी से आगे बढ़ीं। बेटा, तुम ठीक हो? कहाँ लगी है? खून तो नहीं निकल रहा? एहसन ने आहिस्ता से सर उठाया। आंटी जी, लगता है शादी के बाद शोहर के इस्तकबाल का यही तरीका होता है। कुबरा बेगम का रंग शर्म से सुर्ख हो गया। अल्लाह माफ करे, नेहा भी ना हद करती है। मैं अभी पूछती हूँ उससे। इतने में नेहा, जो दरवाजे के पीछे छुपी सब सुन रही थी, फौरन अंदर आ गई। उसकी आंखों में शर्मिंदगी, चेहरे पर हवाइयां और जुबान जैसे तालू से चिपक गई हो। वो धीरे से बोली, मुझे अंदाजा नहीं था कि आप आ जाएंगे। वो बच्चे, मैं, वो बैट, निशाने से तो पता चल गया। तुम्हें अंदाजा नहीं था। एहसन की आवाज में तल्खी थी, मगर उसके लफ्जों में कोई सख्ती नहीं, जैसे वो जानबूझकर खुद को रोके खड़ा हो। नेहा ने नजरें झुका ली। आंखों में नमी उभर आई थी। कुबरा बेगम नेहा को उससे पहले डांटती कि उकता कर दरमियान में बोल पड़ा, आंटी रहने दें, गलती मेरी ही थी और मुझे कुछ खास लगी भी नहीं है। कुबरा बेगम ने हैरानी से दामाद को देखा, जो अपने जख्म से ज्यादा नेहा के शर्मिंदा चेहरे की फिक्र में था। दिल ही दिल में उन्होंने भी माना, ये रिश्ता महज रस्म निकाह नहीं, कुछ गहरा था। नेहा ने हिम्मत करके एक बार फिर नजरें उठाई। माफ कर दें, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। एहसन ने आहिस्ते से सर हिलाया। कुबरा बेगम के जाते ही सिर्फ एहसन और नेहा रह गए थे। नेहा नजरें झुकाए खड़ी थी और एहसन अपने सर पर हाथ रखे उसकी तरफ देख रहा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एहसन ने एक ठंडी सांस ली। फिर हल्के मगर जहरीली लहजे में बोला, वैसे तुम्हारी बैटिंग अच्छी है। पहला शॉट ही सर पे लगा। तुम तो क्रिकेट में कौमी टीम की पहली दुल्हन कप्तान बनने का एजाज हासिल कर सकती हो। नेहा ने आंखें उठाकर हैरत से उसे देखा। वो तंज के निश्तर खा चुकी थी। ऐसे ने बात जारी रखी। अब की बार लहजा मजीद कचोके देने वाला था। माना उससे गलती होगी, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, किस हक से उसे सुनाया जा रहा था, या किस बात का गुस्सा था। वैसे सोच रहा हूँ, शायद तुम्हें मेरी वापसी की खुशी कुछ ज्यादा हो गई थी, इसलिए इतने प्यार से इस्तकबाल किया। नेहा ने आहिस्तगी से कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो आना भी नहीं चाहता था। वो सांस लेकर रुका, फिर नरम मगर दुख भरे अंदाज में बोला, अम्मी की जिद ना होती तो शायद तुम्हारे इस मोहब्बत भरे इस्तकबाल से बच जाता। नेहा जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों के किनारे नम होने लगे और दिल में एक नाकाबिले बयान खलासा फैल गया। ऐसे ने एक गहरी निगाह नेहा पर डाली। उसकी आंखों में वो सवाल थे जो कभी लबों तक ना आया। क्या मेरे होने या ना होने से आपको कोई फर्क भी पड़ता है? वो गिला करना चाहती थी, लेकिन कुछ बोला ही नहीं गया और फिर वो अंदर चला गया। नेहा वही खड़ी रह गई। ना वो बेड के वार का दर्द था, न कुबरा बेगम की डांट का असर, बस एहसन का वो एक जुमला, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। दोपहर के वक्त घर की छत से हंसी की आवाजें गूंज रही थी। नेहा का नन्हा सा मगर जिंदगी से भरपूर खानदान एहसन को खुश आमदीद के लिए जमा था। ड्राइंग रूम में बैठे एहसन के चेहरे पर एक मस्नूई मुस्कुराहट चमक रही थी, जो बाहर से खुश मिजाजी का तासुर दे रही थी। वाह वाह, माशाल्लाह, हमारे जीजू तो बॉलीवुड के हीरो लग रहे हैं। नेहा की बड़ी बहन अरीबा ने शौकी से कहा, और सबके कह के गूंजे, बस ये नेहा ही है जो संभाल सकती है इतने ग्रेसफुल आदमी को। दूसरी बहन अलीना ने हंसते हुए जुमला मारा। ऐसे ने बमुश्किल एक झूठी सी हंसी होंठों पर सजाई और नजरें झुकाई। नेहा, जो पास ही बैठी थी, दिल ही दिल में एहसन का चेहरा पढ़ रही थी। नन्हा हारून, अलीना का 3 साला बेटा, दौड़ता हुआ एहसन की गोद में चढ़ गया। आपका मोबाइल कहाँ है? गेम खेलनी है। उसने हाथ आगे बढ़ाया। बेटा बात में, एहसन ने नरमी से कहा, मगर वो बाज कहाँ आता। अभी दो ना, आप बोरिंग है। उसकी आवाज चुभती हुई थी। एहसन की पेशानी पर एक लम्हे को शिकन उभरी, मगर उसने सब्र का जाम पी लिया। चेहरे पर फिर वही मस्नूई मुस्कुराहट। ये लीजिए, लेकिन ज्यादा देर नहीं, ठीक है? ओ जीजू डर गए। अरीबा हंसते हुए बोली। नेहा का दिल सिकुड़ गया। ये वो एहसन नहीं था जो बेधड़क शादी की पहली रात उसके सारे भरम तोड़ गया था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? शायद उसी रिश्ते की खातिर जिसे वो खुद कभी कबूल ना कर सका था, या फिर उस बार भी अंकल ने मजबूर किया होगा। वो तल्खी से सोचकर मुंह मोड़ गई। अपनी बहनों के इस कदर फ्री अंदाज पर उसे चिढ़ हो रही थी। बस करें आप लोग, नेहा आहिस्ता से बोली, मगर कोई सुनने को तैयार ही ना था। एहसन ने नजरें चुरा ली, लेकिन नेहा ने देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे अंदर कोई तूफान दबा रखा हो। रात गहरी हो चुकी थी। लॉन के दरवाजे की चिक चिक बंद हो चुकी थी। कुबरा बेगम की तेज नजरें और खानदान की चहमगोइयां
नेहा के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई। एहसन पहले से मौजूद था। बेड पर एक तरफ खामोश चेहरा, दीवार की सिमत। नेहा कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही। दिल चाहा चली जाए कहीं भी, सिर्फ यहाँ से दूर। आंखों में आंसू थे मगर लब सिले हुए। चुपचाप बेड के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ी। चादर खींची और दबे कदमों लेट गई। दरमियान में तकिए की एक दीवार रखी, खामोशी की तलखी की, अना की। एहसन ने करवट बदली, लेकिन कुछ न कहा। नेहा ने आंखें बंद की, लेकिन दिल चीख रहा था। एक ही बिस्तर पर हूँ, लेकिन दिलों के शहर इतने दूर हैं कि सदियों का फासला भी कम पड़ जाए। नेहा की आंख सूरज की हल्की रोशनी से खुली। लिहाफ एक तरफ पड़ा था और कमरे में एक अजब खामोशी छाई हुई थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, जैसे रात की खामोशी अभी भी रूह पर छाई हो। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, एहसन उसके बहुत करीब था। वो हैरत से सीधी हुई। एहसन करवट लेकर बंद आंखों से गहरी सांसें ले रहा था। दोनों के दरमियान का फासला कम हो चुका था। नेहा की सांस रुकने लगी। नेहा ने आहिस्ता से खुद को पीछे किया, लेकिन तभी एहसन की आंख खुल गई। नजरें मिली, खामोशी टूटी। एहसन की आंखों में एक लम्हे को हैरत, फिर तड़प और फिर सहर भर गया। तुम मेरे लिए एक मजबूरी थी, हो और रहोगी। जिस्म की गुर्बत दिल की जगह नहीं ले सकती। नेहा साकित हो गई। जुबान खुश्क, आंखें नम और दिल दिल जैसे शोलों में जलने लगा। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अल्फाज कहीं गुम हो चुके थे। एहसन उठा, अलमारी से कपड़े निकाले और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अपनी बेरहमी, अपनी दूरी और अपनी जिद के साथ। नेहा ने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो उसके लिए एहसन को कभी माफ नहीं करने वाली थी। सबके लाख रोकने पर भी वो नहीं रुका। लेकिन एक बात थी जो नेहा को अच्छी लगी। वो थी उसके बाबा को देने वाली इज्जत। चाहे वो अदाकारी ही कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अच्छा लगा। काश वो इसके साथ भी अच्छा होता। शुक्रिया मेरे घर वालों को इज्जत देने के लिए। नेहा ने गाड़ी से बाहर भागती दौड़ती दुनिया को देखते हुए कहा। वो कुछ नहीं बोला, बस कार ड्राइव करता रहा। मैं जल्दी बाबा से बात कर लूंगी, बस उनकी तबीयत का ख्याल करती खामोश हूँ। वो उससे कह तो रही थी, लेकिन वो एक फैसला खुद से करके आई थी कि बाबा को इस शादी की हकीकत कभी नहीं बताएगी। अपनी वजह से तकलीफ नहीं दे सकती थी, इसलिए अपनी तरफ से रिश्ता निभाने को ठान चुकी थी, चाहे अब रास्ते जहाँ भी ले जाएं। वो अब भी कुछ नहीं बोला। खड़ूस वो दिल में बोलती रुख मोड़े बाहर देखने लगी। आगे का सफर खामोशी से काटा। दिन गुजरते गए। वो एक कमरे में रहकर भी अजनबी थे। वो अपने फराइज निभा रही थी, लेकिन वो किसी भी लिहाज से इससे बात नहीं करता था। शुरू शुरू में तो ऐसे ही चलता रहा। ऐसे नाश्ते पर मेज पर भी चुप रहता। नेहा चुपचाप नाश्ता लगाती, सबके दरमियान हंसती रहती, मगर अंदर से वो टूट गई थी। इस कदर नजरअंदाजी पर वो सफर से वापस आते ही उसे सोफे पर जाकर सोने का हुक्म सादिर कर चुका था। इसलिए सोफे पर ही सोती थी, इस उम्मीद में एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो खुद भी हकीकत से मुंह मोड़े अपनी कोशिश में लगी थी। नेहा ने खुद को संभाल लिया था। जो आंसू रात भर बहते थे, अब सुबह उनकी जगह खामोशी ने ले ली थी। घर वालों का रवैया बहुत अच्छा था। अर्शमान साहब ने तो उसे बेटी मान लिया था। उनका कहना था कि उन्हें हमेशा से एक प्यारी सी बेटी चाहिए थी। जो ख्वाहिश तब पूरी नहीं हुई, अब पूरी हो गई, क्योंकि नेहा उनकी बहू नहीं, बेटी थी। एहसन का रवैया बदला नहीं था। सुबह उठता, जल्दी दफ्तर जाता तो अक्सर वापसी देर से होती। घर आता तो या तो चीख चिल्लाता या मोबाइल पर बातों में मसरूफ रहता। एक दिन वो कमरे में दाखिल हुआ तो गुस्से से चिल्लाया, ये मेरी शर्ट कहाँ रखी है? दिमाग खराब कर दिया है तुमने? नेहा ने पुरसुकून लहजे में कहा, अलमारी के दाएं तरफ रखी है। लेकिन वो तो जैसे बहाना ढूंढ रहा था, तुमसे कुछ भी ढंग से नहीं होता। हजार दफा कहा है मुझसे और मेरी चीजों से दूर रहो। वो दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। इन दिनों में कुछ तब्दील हुआ हो या ना, एहसन लाशोरी तौर पर नेहा का आदी जरूर हो रहा था। नेहा सिर्फ धीरे से मुस्कुरा दी। शायद इस तरह एक दिन वो एहसन का दिल जीत जाती। उसने अपनी दुनिया खुद बसा ली थी। अगर ऐसे ही जिंदगी गुजारनी थी तो ऐसे ही ठीक है। किताबें, कुरान, ससुराल वालों की खिदमत और छोटे छोटे काम, ज्यादा वो इन सब में ही मसरूफ रहती थी। मगर तन्हाई हर वक्त उसके साथ चलती थी। रात को अक्सर छत पर जाकर वो आसमान को देखती, जाने ये सब कब तक चलना था। वो कुछ नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी इस रिश्ते का बोझ अपने नातवा कंधों पर डाले घसीट रही थी, बिना किसी मजबूत सहारे के। दीवार पर लटकी घड़ी की सुइयां जैसे वक्त को चुपती हुई खामोशी के साथ काट रही थी। वो अभी तक वापस नहीं आया था। नेहा खिड़की के पास खड़ी बाहर कहीं दूर खिला में तक रही थी। सारी दुनिया जैसे रुक चुकी हो, बस उसका दिल धड़क रहा था, और वो भी बेतरतीब। अचानक पीछे से आवाज आई, सुनो। वो डर कर उछली। फिर नेहा चौंक कर मुड़ी। आंखों में खौफ और हैरत का इम्तजाज था। ऐसे ने आगे बढ़कर एक लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। ये लो, और जाकर बाबा को वापस करके आओ।
लापरवाह और बेजारी से वो अलमारी की तरफ बढ़ा। नेहा ने हिचकिचाते हुए लिफाफा थामा। पलकें लरसी। ये क्या है? उसने आहिस्तगी से पूछा, जैसे दिल को पहले ही सच्चाई का अंदेशा हो। एहसन के लबों पर तंज की तल्ख लकीर उभरी। ढोल है, गले में लटका लो। आवाज में जहर घुला हुआ था। अंधी हो या परला निकला नहीं आता। वो कुछ सख्त सुनना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों इसके सामने जुबान तलों को चिपक जाती थी। वो तेज आवाज में बोला था। आज वो आम दिनों से ज्यादा सर्द रवैया रखे हुए था। लिफाफा उसके हाथ से सिरक गया, या शायद उसके अंदर कुछ टूट कर जमीन पर आ गिरा था। पागल लड़की, हनीमून के टिकट हैं। ऐसा ने झुक कर उठाए और फिर उसके हाथ में थमाए। ऐसा ने अब के तेज लहजे में कहा, जैसे उसकी जज्बातियत महज तमाशा हो। जाओ बाबा को वापस करके आओ। उनसे कहो तुम नहीं जा सकती, कुछ भी बहाना करो। लफ्जों के तीर सीधा दिल चीर रहे थे। नेहा की पलकों पर लरसते हुए आंसू ठहरे। वो कुछ कहना चाहती थी। आप खुद कह दें। आवाज में आजसी नहीं, बेबसी थी, जैसे आखिरी बार खुददारी समेटकर सवाल किया हो। एहसन की आंखों में सख्ती उभर आई। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा है उतना करो। ये आखिरी ज़र्ब थी। नेहा पलके झुकाए लफ्जों की छाँव में जलती चुपचाप पलट गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर खड़ी नेहा ने अंदर कदम रखने से पहले चंद लम्हे खुद को संभालने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन कोई सवाल, कोई पुकार हो। उसने हाथ में थामा सफेद लिफाफा मजबूती से पकड़ा, और लबों पर वो मुस्कुराहट सजाई जो दिल से कोसों दूर थी। अंकल, क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसके लहजे में झिझक थी। अर्शमान साहब सोफे पर बैठे अखबार के औराक पलटते पलटते रुक गए। निगाह उठाकर नेहा की तरफ देखा, और वही रौबदार करख्त लहजा अपनाया जो बरसों से उनकी पहचान था। बिल्कुल भी नहीं। एक लम्हे को खामोशी छा गई। पहले बाबा बोलो, फिर अंदर आ सकती हो। नेहा की पलकें लरसी, दिल अंदर से पिघलने लगा। अपने अंदर के जख्मों को छुपाते हिम्मत जमा करते वो 2 कदम आगे बढ़ी। बाबा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अर्शमान साहब की निगाह कुछ लम्हे इस पर ठहरी, फिर नरम हो गई। आ जाओ नेहा बेटा। नेहा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सफेद लिफाफा उसके हाथ में अब भी थड़थड़ा रहा था, जैसे वो भी कुछ कहना चाहता हो। उसके चेहरे पर बनावटी सुकून की परछाई थी, मगर आंखें वो कहीं और की गवाह थी। वहां उदासी थी, थकन थी, और एक ना कही कहानी। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं ये वापस करने आई हूँ। उसने लिफाफा आहिस्तगी से उनकी तरफ बढ़ाया। अर्शमान साहब ने बगौर नेहा को देखा। लफ्जों में झिझक थी, आंखों में इस तरह की परछाई। क्या इसर ने कुछ कहा है? उन्होंने संभल कर पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेहा का लहजा कांपने लगा। वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उस झूठ के पीछे सच की एक तवील रात छुपी थी। मैं अभी नहीं जाना चाहती। लफ्ज जैसे उसके लबों से छन कर गिरे थे। क्या मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जा सकती हूँ? क्या ये तुम्हारा घर नहीं है? अर्शमान साहब थोड़ा सख्त हो गए। तभी जीनत बेगम कमरे में दाखिल हुई। नेहा को देखकर कहा, ये कैसी बात की है नेहा बेटा? ये तुम्हारा ही घर है। अर्शमान साहब ने गहरी सांस ली। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। उनका अंदाज अब सख्ती से नहीं, फिक्र से भरा हुआ था। नेहा ने नजरें झुका ली। बाबा, कोई बात भी नहीं है, बस घर वाले याद आ रहे हैं। एक लंबी खामोशी। अर्शमान साहब ने थोड़ा झुक कर कहा, ठीक है, जाओ और एहसन को भी अपने साथ ले जाओ। नेहा का दिल बैठ गया। बाबा, मगर वो कुछ कहना चाहती थी, रुकना चाहती थी, मगर उन्होंने हाथ उठाकर कहा, अगर मगर कुछ नहीं, एहसन से मैं खुद बात कर लूंगा। और वो वहीं खड़ी रह गई। अब वो एहसन को कैसे बताती कि वो क्या रायता फैला कर आई है, इसलिए परेशानी से नाखून खाती कमरे में पैदल मार्च कर रही थी। एहसन जैसे ही वॉशरूम से निकला, तौलिया गर्दन पर डाले मामूल के अंदाज में चलता हुआ बाहर आया। सामने दरवाजे के करीब खड़ी नेहा को देखकर एक लम्हे को रुका। नेहा की सांसें जैसे हलक में अटक गईं। दिल धड़कना भूल गया। दोनों की नजरें मिली। वो लम्हा, वो आंखें, वो खामोशी। नेहा की नजरें उस पर जमी थी, जैसे सदियों बाद देखा हो। मगर अगले ही लम्हे वो नजरें चुरा गई। कुछ भी कहे बगैर वापस दे दी टिकट? ऐसे ने पलट कर देखा। आंखों में बेनियाजी थी। हाँ, दे दी। नेहा ने बमुश्किल लब हिलाए। आवाज इतनी धीमी थी कि शायद हवा भी सुने तो हैरान हो जाए। एहसन की निगाहों में तजस्सुस उभरा। शायद पहली बार उसने नेहा को वाकई देखा हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उसने लापरवाही से सवाल दाग दिया, जैसे राह चलते किसी अजनबी से पूछ लिया हो। नेहा तो सुनकर साकित रह गई। उसके दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। ये कैसा रिश्ता है? ये कैसा रिश्ता है जो मेरा नाम तक नहीं जानता? उसकी आंखों में नमी उतर आई, मगर लबों पर तंज की तलखी छा गई। निकाह ख्वाह ने बोला नहीं था क्या?
आवाज में छुपता हुआ सवाल था। एहसन एक लम्हे को चौंका। उसे वाकई इस कदर गहरे तंज की उम्मीद नहीं थी, मगर फिर वो लापरवाही से सर झटक कर रह गया। और जब उसने दोबारा नजर उठाई, नेहा जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी, मगर माहौल में खामोशी छाई थी। अर्शमान साहब अखबार रखते हुए एहसन की तरफ मतवजा हुए। तुम आज नेहा के साथ उसके घर जा रहे हो, कुछ दिन के लिए। जब तक वो रहना चाहे वहीं रहोगे। एहसन का निवाला गले में ही अटक गया। क्या मतलब बाबा आपका? उसकी आवाज में गुस्सा, हैरानी और बेबसी सब यकजा हो गए। ये फैसला हो चुका है। अर्शमान साहब का लहजा दो टोक था। मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों जाऊं उसके साथ? एहसन अपनी जगह से खड़ा हो गया, जैसे किसी ने उसके गरूर को चैलेंज कर दिया हो। बाबा, ये नाइंसाफी है। मगर सब एहतजाज रायगा गए। फैसला हो चुका था। एहसन ने कीना परोर नजरों से दरवाजे के पास खड़ी नेहा को देखा। उसकी आंखों में जैसे शोले भड़कने लगे। नेहा ने बमुश्किल थूक निकला। उसकी सांसें बेतरतीब हो गईं। अर्शमान साहब ने बगौर एहसन का नेहा को घूरना देखा था। वो कम अज कम इस चिड़ियाघर में दोबारा नहीं जा सकता था, इसलिए हनीमून पर ही निकल गया। नेहा को क्या घूमना था? वो तो खुद ही मजे से घूम कर थका हारा होटल में आता और लंबी तान कर ऐसे सो जाता जैसे हल जोकर आता हो। शामत तो तब आई जब बाबा ने उनकी तस्वीरों का मुतालबा किया, और वो धूप निगल कर रह गया। अगले रोज ही वो इसे हर जगह लिए फिर रहा था, जहां से तस्वीरों के व्यूज अच्छे आते। नेहा, हाँ, तुम लड़की जल्दी चलो। कितनी सुस्त और काहिल हो। नेहा को गुस्सा चढ़ा और उससे आगे बढ़ने के चक्कर में उसका पांव मुड़ा और वहीं बैठ गई। एहसन कुछ देर तो उसको झुंझला कर देखता रहा, फिर आगे बढ़कर गोद में उठा गया। नेहा का तो दिल धड़क धड़क कर पागल हो गया, जबकि वो कोई नोटिस लिए बगैर आगे बढ़ता गया। नेहा इतने दिन में अभी तक ये बात समझ नहीं आई थी। वो ये सब क्यों कर रहा था? ऐसी क्या मजबूरी थी? मुझे वो आइसक्रीम खानी है, नेहा ने झिझकते हुए कहा। एहसन ने एक नजर उसे देखा और आइसक्रीम ले आया। क्या मैं ये भी खा सकती हूँ? अपने खाने बाद नेहा की नजर उसकी वाली आइसक्रीम पर थी। जरूर, ये लीजिए मलकाए आलिया, वो चिढ़कर बोला। वो बेसाख्ता हंसती और एहसन जैसे इस शफाफ हंसी में खो गया हो। फिर अचानक सर झटक कर रुख मोड़ गया। मुस्कुराओ, सेल्फी कैमरा ऑन करते हुए कहा। और नेहा वाकई मुस्कुरा दी। ये पल बहुत यादगार थे। वो एक पल के लिए भी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुआ था। उसका ख्याल रख रहा था। और इस अरसे में फोन यूज करते उसने देखा तक नहीं था। वो एक बार फिर से ख्वाब बुनने लगी थी। 15 दिन की सैरो तफरी के बाद वो वापस लौट आए थे। नेहा को लौटना अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि एहसन की तवज्जो की इतनी आदत हो गई थी, अब जरा सी नजरअंदाजी उसे तोड़ देती। यहाँ आते ही एहसन की रूटीन पहले जैसी हो गई थी, और नेहा ने आज दो टोक बात करने के बारे में सोच लिया था। इन 15 दिनों में वो एक मुख्तलिफ एहसन से मिली थी। बेटा, एक काम करो, ये फाइल ऑफिस में अपने बाबा को देकर आओ। बहुत अहम। जीनत बेगम ने फाइल नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं ड्राइवर के हाथ भिजवा देती हूँ, लेकिन बहुत अहम। आंटी शर्मिंदा तो मत करें, मैं दे आती हूँ। कुछ देर में वो फाइल अर्शमान साहब को दे चुकी थी। उनकी मीटिंग थी, तो अपने सेक्रेटरी के साथ उसे एहसन की ऑफिस में बिठाने के लिए वो कह चुके थे। उनका इरादा आज अपनी बहू से स्टाफ को मिलवाने का था। नेहा को कुछ दिन पहले की गई अपने ससुर से गुफ्तगू याद आई, जब वो इसे ऑफिस ज्वाइन करने का कह रहे थे, और वो रसानियत से मना कर गई थी। उसका मानना था वो कैसे हैंडल कर सकेगी सब कुछ। मैम, ये सर एहसन का ऑफिस है, आप इंतजार करें अंदर। अर्शमान सर जैसे ही आते हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वो चौंक कर ख्यालों से बाहर आती मुस्कुरा दी। ओके। अभी नेहा ने दरवाजा खोला ही था कि अपने सामने नजर आता मंजर उसे पत्थर कर गया था। एहसन के बहुत करीब वो टेबल पर बैठी उस पर झुकी हुई थी। नेहा के अंदर जैसे कुछ उबाल सा उठा था, और आगे बढ़ती उस लड़की को बाल से पकड़कर दूर कर चुकी थी। ये गैर इरादी अमल था। एहसन के साथ साथ उस लड़की का भी रंग उड़ा था। उससे पहले नेहा इस लड़की का मुंह नोच लेती, एहसन दरमियान में आ गया। डोंट टच माई गर्ल। नेहा तो फट पड़ी। ये परकटी कबूतरी आपकी गर्ल है तो मैं क्या हूँ? इतनी तेज आवाज पर एहसन ने नागवारी से उसे देखा। नेहा का दिल चल उठा, सांसें तेज हो गईं, कदम जमीन पर गरजदार पड़े, और वो इन दोनों के बीच आ खड़ी हुई। अपनी बीवी की आंखों में आंखें डालने की जरूरत नहीं है। आप में एहसन और आप हराम को गले लगा रहे हैं। आपने मुझे दिल में जिंदगी में जगह ना दी, मगर हराम रिश्ते को हलाल पर तरजीह कैसे दे सकते हैं आप? यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो एक बीवी को करना चाहिए। क्या बीवी बीवी की रट लगा रखी है? मैं पहले दिन ही सब कुछ क्लियर कर चुका था। आज साफ साफ तो मैं करूंगी, आपसे और आपके वालिद से। वो तेजी से मुड़ी। रुको, अगर डैड को मालूम होता
तो वो इसे जायदाद से आग कर देते। अजीब मुसीबत थी, लेकिन वो रुकी नहीं। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। वो शुरू से आखिर तक सब कुछ बता गई। बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसे अब बदल चुका है। क्या वो शादी से पहले किसी को पसंद करते थे? वो तो पहले उन्होंने कुछ बोलना चाहा। क्या आप ये भी जानते हैं वो लड़की उसी ऑफिस में है? ये बात उनके लिए नहीं थी। इस बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। अर्शमान साहब आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे। इससे पहले वो कदम उठाते नेहा बोल उठी। बाबा, मैं बस अपने बाबा के लिए रिश्ता निभाना चाहती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एहसन की जिंदगी में एक बेज़रर शय बनी रह जाऊंगी। अगर वो उसके साथ खुश है तो मैं अलग होने के लिए तैयार हूँ। नेहा को अपने गैर इरादी अमल और इस कदर बदतमीजी पर गुस्सा आ रहा था, और अब तो वो बाबा को भी बता चुकी थी। अगर एहसन ने कोई वादे किए होते जब, तो उसका गिला और शिकायत बनती थी। अर्शमान साहब को बड़ी मुश्किल से किसी बड़े फैसले से रोका। वो अभी पार्किंग में दाखिल हुई थी। दिल टूटा हुआ था और कदम बोझल थे। वो एहसन को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी जब उसने हरीम को किसी लड़के की बाहों में झूलते देखा, और उसकी बातें सुनकर तो वो जैसे साकित ही होगी। हरीम उनके मुखालिफ पार्टी के लिए काम करती थी। एहसन के साथ वो सिर्फ पैसों और अपने मफाद के लिए थी। एहसन के करीब रहकर वो अपनी बासानी यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर मुखालिफ कंपनी को दे सके, वरना उसे एहसन में जरा बराबर दिलचस्पी नहीं थी। नेहा एक मजबूत और अटल फैसला करती वापस मुड़ी। वो बेआवाज अंदाज महारत से सब्जी काट रही थी, लेकिन दिल किसी और धुन में था। दिल की धड़कन में एक अजनबियत खुली थी, जैसे आने वाले तूफान का पेश खैमा हो। वो यही सोच रही थी एहसन का रद्द अमल क्या होगा। वो बस कर गई थी जो इसे ठीक लगा। अचानक पीछे से एक सख्त लहजा उभरा, जो उसके वजूद को जैसे झंझोड़ गया। तुम इधर आओ। नेहा का हाथ झटके से रुका। चेहरा पलटते एहसन नजर आया। एहसन चेहरे पर उलझन, माथे पर तेवर, आंखों में कुछ अधूरा सा सवाल। ये क्या ब्लंडर किया है? एहसन की आवाज में तल्खी की धार थी। बाबा ने मेरे बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं। ऐसा क्या कहा है तुमने? ये सब तुमने किया है। उसकी आंखों में नाराजगी थी, जैसे नेहा ने कोई नाकाबिले माफी जुर्म कर दिया हो। मुझे दर्द हो रहा है। उसने नेहा का नर्म हाथ पकड़कर मजीद जोर से मोड़ा और उसे कमर पर मोड़ दिया। वो गुस्से में था, और नेहा शुरू दिन से ही उसके गुस्से से खाइफ सी थी। नेहा का दिल लरस गया, मगर लब सख्ती से बंद रहे। तो मैं क्या करूं? वो अब की बार निडर बनकर बोली। उसकी आवाज हल्की मगर थकी हुई थी, जैसे उस तलखी से बारहा गुजर चुकी हो। एहसन ने तंजिया अंदाज अपनाया। ये जो स्कीम तुम्हारे दिमाग में चल रही है ना, कि तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी, तो सरासर तुम्हारी खाम ख्याली है। ये जुमला तीर बनकर लगा। नेहा की पलकें लरसी, आंखें नम हुई, लेकिन वो रोई नहीं। वो खामोश नजरों से उसे देखती रही, जैसे आंखों से सवाल कर रही हो। क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें अपनाना चाहती हूँ? ऐसे नहीं देखो जैसे तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, या तुमसे किए वादे तोड़ दिए हो मैंने। निकाह से बढ़कर भी कोई वादा होता है एहसन? नेहा ने धड़कते दिल के साथ खुद को संभाला, फिर आहिस्तगी से मजबूत लहजे में बोली। एहसन जैसे कुछ न बोल सका। एक जुमला ही उसका मुंह बंद कर दिया। आप में कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे, जिसकी चाह में जान हथेली पर लेकर आपके मुंतजिर रहूं? बीवी हूँ आपकी, गुलाम नहीं। ना ही भाग कर आई हूँ, पूरे खानदान के सामने ब्याह कर लाई गई हूँ। नेहा ने मजबूत लहजे में कहा। आखिर वो कब तक दब कर रहती? वो एक एक लफ्ज जैसे अपना हक जता रही थी। कोई झुकाव नहीं, कोई फरियाद नहीं, सिर्फ सच्चाई और खुददारी। तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। आपको नहीं मानना तो ना मानिए बीवी, मैं तो आपको शोहर मानती हूँ। एहसन का चेहरा पहली बार बदला। एक झटका सा लगा, जैसे नेहा के अल्फाज ने उसकी अना को हिला कर रख दिया हो। वो मुंह खोले और शौक से उसे देख रहा था। ओ यार, तुम तो बोलती भी हो, जंगली बिल्ली भी हो। बेसाख्ता ऑफिस वाला हरीम के साथ किया अमल याद आया। दांत पीसे इतने अरसे तुम्हारी मासूम शक्ल मुझे गिल्टी कर देती थी कि तुम्हारे साथ गलत किया। आपको होना भी चाहिए गिल्टी। खैर जो भी है, बाबा को मना करो। इतना ही मसला है तो जाकर खुद अंकल से बात करें और मना कर दें। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नेहा ने चेहरा मोड़ लिया। आवाज में थकन छुपी थी, लेकिन नजर में फैसला था। पछताओगी? एहसन की आखिरी कोशिश, आखिरी धमकी, या शायद पुकार। नेहा ने सट लहजे में जवाब दिया। अभी कौन सा जन्नत की सैर पर निकली हूँ। वो खुद बाबा से बात कर लेता अगर वो यहाँ होते। वो 1 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। ऐसा वो कभी नहीं करते थे। वो जरूर खफा थे, लेकिन जाने से पहले जो मुसीबत सर डाल गए थे उसका क्या करता वो? अर्शमान ग्रुप ऑफ कंपनीज बोर्ड रूम। 8 अफराद कॉन्फ्रेंस टेबल के गिर्द मौजूद। बड़ी एलसीडी पर बिजनेस प्रेजेंटेशन जारी है। सबकी नजरें स्क्रीन और फाइलों पर थी। दरवाजा खुला। नेहा स्याह पेंसिल हील्स, क्रीम कलर की कैप, स्लीव शर्ट और सलीके से बंदी पोनी में अंदर दाखिल हुई। चाल में वकार, चेहरे पर खुद एतमादी और आंखों में वही बेबाक चमक।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसकी आवाज़ गूंजी, सब चौंक गए। एहसन जो फाइल पढ़ रहा था अचानक सर उठाकर देखा, वो जैसे पलके झपकना भूल गया हो। मिसेस नेहा अहमद, सेक्रेटरी ने एहतराम से पूछा। यस बट टुडे जस्ट कॉल मी डायरेक्टर नेहा। वो कुर्सी खींचकर एन एहसन के सामने बैठ गई। एहसन की पेशानी पर बल पड़ गए। ये क्या ड्रामा है, वो धीरे से बोला, सिर्फ इतना कि पास बैठे नेहा सुन सके। नेहा हंसी, वो हंसी जिसमें शरारत भी थी और जीत का ऐलान भी। शादी के मायदे में ये नहीं लिखा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बनूंगी, बिजनेस पार्टनर भी हूँ। एहसन का दिल किया कि सब फाइलें उलट दे। ये वो नेहा नहीं थी जिसे वो डांट कर या गुस्सा करके चुप करवा देता था। ये यहाँ उसके लेवल पर खड़ी थी, बल्कि शायद कुछ कदम आगे की रिप्रेजेंटेशन में कुछ तब्दीली प्रोजेक्ट अल्फा की है। एहसन नेहा ने फाइल आगे सिरकाते हुए कहा। मुझे लगता है कि अगर रिश्ते थोपे जा सकते हैं तो बिजनेस आइडियाज भी। एहसन ने उसे घूरा मगर कुछ कह ना सका। सब लोग नेहा की बात सुनने लगे। वो बोलती जा रही थी, दलाइल, फिगर्स, प्लान्स, अंदाजा और एतमाद, जैसे बरसों से वो इस कुर्सी पर हो। प्रेजेंटेशन के बाद सबने ताली बजाई। एहसन चुप था। नेहा झुकी, उसके कान के करीब आकर सरगोशी की। तुम सिर्फ शोहर हो, बॉस नहीं। यहाँ रूल्स मेरे हैं और गेम भी। वो सीधी होकर मुस्कुराई और कमरे से निकल गई। एहसन कुर्सी पर बैठा जैसे उसकी दुनिया उलट गई हो। ये कल से दूसरा झटका था। ये बाबा ने क्या किया था? एहसन ने फिर तंज कसा जब नेहा चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाने के बर्तन लगा रही थी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्या रोबोट हो या दिमाग ही नहीं है? एहसन तंग आ गया था। वो जितना इससे हर्ट करने की कोशिश करता उतना ही नाकाम ठहरता। घर में वो वैसे ही खामोश और फरमाबरदार बीवी बनी घूमती थी। एहसन के किसी तंज और बेरुखी का जवाब नहीं देती थी। जाने ऑफिस में क्या हो जाता था उसे। दिन ब दिन बेरुखी और तंज में इजाफा होता रहा। वक्त का काम था गुजरना। नेहा ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी। हरीम को वो ऑफिस से सच सामने लाए बगैर निकालना चाहती थी। यहाँ नजरों के सामने होती तो एहसन को सच दिखाना आसान होता। एहसन पर लगी अर्शमान साहब की पाबंदियां कुछ तासुर देना शुरू हो गई थी। एहसन बात पे बात लड़ने लगा था। एहसन ऑफिस में दाखिल हुआ तो नेहा पहले से मौजूद थी, मुकम्मल प्रोफेशनल गेटअप में, बाल बंधे, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में अजीब सी खामोश रोशनी। गुड मॉर्निंग एहसन, उसने पूरी टीम के सामने एहसन को मुखातिब किया। आपको नई पॉलिसी फाइल्स देखनी है और जैसा आप कहते हैं ना, काम में जज्बात नहीं होने चाहिए, तो आपकी हदायत के मुताबिक स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहूंगी। नेहा का लहजा नरम था, लेकिन हर लफ्ज एक आईना था। एहसन कुछ बोलने ही लगा था कि हरीम अंदर आई। एहसन, लंच साथ। नेहा ने सर उठाया और नरम आवाज में कहा, मिस हरीम, कंपनी रूल्स के मुताबिक ऑफिस आवर्स में पर्सनल विजिट्स अलाउ नहीं है। आप अगर फाइल जमा करानी आई हैं तो रिसेप्शन से करवा दें। और एक बात और, ऐसे मुंह उठाकर आप कहीं भी आ जा नहीं सकती। हरीम का रंग उड़ गया। गुस्से से कुछ बोलती कि एहसन ने हरीम को इशारे से चुप रहने को कहा। घर की स्टडी रूम में नेहा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। एहसन का अंदर आता है। हाथ में चेकबुक थी। एहसन ने बेजारी से कहा, इस पर साइन करो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। नेहा लैपटॉप बंद करके पुरसकून लहजे में, पहले कहो प्लीज। एहसन, वट? उसे शौक लगा। नेहा मुस्कुराई। पहले कहो प्लीज, फिर सोचूंगी कि साइन करना भी है कि नहीं। एहसन जल कर, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? नेहा चाय का कप उठाते हुए, मैं कुछ नहीं कर रही, बस मैनर सिखा रही हूँ। एहसन करीब आकर झुकता है। तुम चाहती क्या हो? नेहा आंखों में शरारत, एहतराम। एहसन दांत पीस कर, ओके प्लीज। वो लुट मार कर अंदाज में बोला, एक बार बाबा वापस आ जाएं, उसे वो देख लेता। एहसन मीटिंग रूम में परेशान सा खड़ा था। बज़ाहिर पुरसकून नजर आने वाला वो शख्स अंदर से टूट रहा था। फाइल कहाँ गई? उसके लबों पर एक ही सवाल था जो बार बार दिमाग की दीवारों से टकरा रहा था। काल पर काल, माथे पर बल और दिल में घबराहट। अगर ये फाइल ना मिली तो? क्लाइंट्स आ चुके थे और कंपनी के साथ वो एक लम्हे में जमीन बोस हो सकती थी। उसने दराजे यहाँ तक कि अपने बैग तक खोलकर देख लिए थे, मगर फाइल जैसे हवा में तहलील हो चुकी हो। तब ही सारा कमरा अचानक अंधेरे में डूब गया। मीटिंग रूम की लाइट ऑफ हो गई। पहले लम्हे सब हैरान हुए, फिर सामने एक बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। फुटेज थी और किरदार था बेनकाब, हरीम। वही मुस्कुराती, सजती, संवरती हरीम। उसे वही फाइल किसी अजनबी हाथ में थमाती दिखाई दी। पूरे कमरे में जैसे सुनाटा फैल गया। एहसन की सांसें उलझ गईं। वो साकित खड़ा था, आंखों में दुख, दिमाग में सवाल और दिल में तेज धड़कन। हरीम? वो? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा करता था, वही उसको पैरों तले जमीन खींच चुकी थी। फोन उसके हाथ में कांप रहा था, बार बार हरीम को कॉल कर रहा था, लेकिन अब हर बात तंज लग रही थी।
नेहा चुपचाप सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी, ना इंतकाम, ना जीत, बस एक ठंडी सांस। एहसन की बेबसी ने उसे तोड़ कर रख दिया था। जिस शख्स ने हर मौका पर उसे नीचा दिखाया, आज वो खुद नीचा हो रहा था। और वो नेहा उसे सहारा देने जा रही थी। वो उठ खड़ी हुई, चुपचाप, खामोश, वकार के साथ। कुछ देर बाद जब एहसन ने फिर सर उठाया तो नेहा हाथ में वही गुमशुदा फाइल लिए उसके सामने खड़ी थी। वो लम्हा, जैसे किसी सहरा में बारिश का पहला कतरा। एहसन की आंखें फैल गई। तुम ये फाइल? नेहा के चेहरे पर पुरसुकून था, मगर आंखों में बहुत कुछ था, शिकायत, दर्द, खुददारी। वो शर्मिंदा होकर नजर फेर गई। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना? एहसन हरीम को बाजू से दबोचे खड़ा था। तुम्हारे पास है भी क्या? अपने बाप के इशारों पर नाचने वाले गुड्डे से ज्यादा हैसियत ही क्या है तुम्हारी? बाप ने कहा शादी कर लो, शादी कर ली। बाप ने ऑफिस का हेड तुम्हारी बीवी को बना दिया। मान लो तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये एक रेस्टोरेंट का मंजर था, जहां हरीम एहसन की इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रही थी। फिर गुस्से से चली गई। एहसन अपने ऑफिस चेयर पर बैठा था, कुर्सी के पुर्श से टेक लगाए, सर दोनों हाथों में थामे, बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख और चेहरे पर एक ऐसा कुल जो शायद सिर्फ वही महसूस कर सकता था। बाप ने कहा शादी कर लो, शादी कर ली। बाप ने ऑफिस का हेड तुम्हारी बीवी को बना दिया। मान लो तुम्हारे बस का कुछ नहीं। वो आंखें मीच गया। दफ्तर के सब लोग जाग चुके थे। रात के 9:30 बज रहे थे। सुनाटे ने ऑफिस की इमारत को अपने बाजुओं में ले रखा था। बस एक कैबिन की लाइट रोशन थी। एहसन, वो मेज पर झुका बैठा था, हाथ में वही फाइल और दिल में अजीब सी खालीपन। हर बार उसने नेहा पर शक किया, तंज किए, इल्जाम लगाए। दरवाजे पर आहट हुई। वो जानता था कौन हो सकता है। नेहा आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुई, सादा शलवार कमीज में, आंखों के नीचे थकन के साए, लेकिन चेहरे पर वही खामोश वकार। ऐसे ने नजरें झुका ली। दिल में कई लफ्ज थे, लेकिन जुबान जैसे सुन हो गई थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, नेहा। कुछ बोली नहीं, सिर्फ सुनने लगी। मैं शर्मिंदा हूँ, उसने कहा, और पहली बार नीचे झुका चेहरा उसके दिल की शिकस्तगी जाहिर कर रहा था। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था, मैंने उसी को हर बार कसूरवार ठहराया। तुम हर बार चुप रही, हर बार सहती रही। और आज नेहा की पलकें भीगने लगी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। एहसन उठा, आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया। मैं वो शोहर नहीं बन सका जिसकी बीवी सर उठाकर जी सके। आवाज भर आई, मैं माफी चाहता हूँ नेहा, दिल से, सच में। नेहा ने पहली बार नजरें उसकी आंखों में डाली। वो आंखें जो आज गरूर से खाली थी, बस एक टूटा हुआ पछतावा था वहां। कुछ लम्हे बाद उसने धीरे से कहा, माफी। एक हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई। आपने दिल दुखाया है, जख्म दिए हैं, अल्फाज से, रवैये से, और माफी एक लफ्ज से नहीं होती एहसन साहब। वो पलटी, फिर नरमी से बोली, जिस दिन आप दिल से मुझे बीवी समझेंगे और मेरे साथ खड़े होंगे, उसी दिन मैं मान लूंगी कि आपने माफी मांगी है। एहसन चुप रह गया, बस उसे जाते हुए देखता रहा, क्योंकि बास माफियां लफ्जों से नहीं, अमल से साबित करनी पड़ती हैं। दिन बदल गए थे, लेकिन नेहा के अंदर वही चुप बसी हुई थी। ऐसन ने कोई वजाहत नहीं दी, बस उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। वो जो पहले हर बात पर तुर्क जाता था, अब रुक जाता है, जैसे किसी की नजर से डरने लगा हो। पहली बार जब नेहा ऑफिस पहुंची, इसे अपना डेस्क साफ मिला। फ्रेश फ्लावर्स रखे थे, कोई नाम नहीं, लेकिन नेहा जान गई थी ये एहसन का काम है। आजकल वो गैर महसूस अंदाज में उसकी परवाह कर रहा था, शायद अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश में था। वह सर झटक गई। बारिश की हल्की बूंदें ऑफिस की खिड़की से टकरा रही थी। नेहा ने फाइल बंद की और घड़ी पर नजर दौड़ाई थी। 6 बज चुके थे। ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। इतने में कैबिन का दरवाजा बजा। एहसन हाथ में 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। कॉफी? नेहा ने थोड़ा चौंक कर देखा, फिर चुपचाप कप थाम लिया। दोनों अपनी चाय से खामोशियों में बैठ गए थे। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज और कॉफी की खुशबू थी। एहसन ने हिम्मत करके कहना चाहा, पर अल्फाज जैसे गले में अटक गए। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ नेहा, बस वक्त पर तुम्हें पहचान ना सका। नेहा ने नजरें झुकाए हुए कहा, और मैंने तुम्हें वक्त दिया ताकि तुम खुद को पहचान सको। एहसन का दिल एक लम्हे को रुका, फिर धड़का। ऐसा लगा जैसे उसे एक नया मौका मिल गया हो। एक और मौका दोगी? उसकी आवाज में इल्तिजा भी थी, उम्मीद भी। नेहा ने कॉफी का आखिरी घूंट लिया, कप मेज पर रखा और आहिस्तगी से कहा, कॉफी की तरह तुम भी बदल गए हो। पहले तल्ख थे, अब जायका समझ आने लगा है। वो उठी, अपना बैग उठाया, दरवाजे तक पहुंची, फिर पलट कर मुस्कुरा कर बोली, तो शायद एक और कप कॉफी पी जा सकती है तुम्हारे साथ। एहसन के चेहरे पर वो पहली सी मुस्कुराहट वापस आई, मगर इस बार उसमें सच्चाई और शुक्रिया था। बारिश थम चुकी थी। दिलों की बारिश अब अंदर हो रही थी। एक कदम एहसन ने बढ़ाया था, तो बाकी कदम नेहा ने तय किए थे। रात के खाने के बाद एहसन सोफे पर बैठा था और मोबाइल पर कुछ देख रहा था।
नेहा ने किचन से चाय बनाई, 2 कप और खामोशी से लाकर उसके बराबर मेज पर रख दिए। वो चौंक गया। ये बेतकल्लुफी अभी तक उनके रिश्ते में नहीं आई थी। मेरे लिए भी है? एहसन ने चौंक कर पूछा, क्योंकि वो अक्सर अपने लिए अलग से बनाता था। नेहा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। एहसन को कुछ अजीब लगा। पहले अक्सर वो गुस्सा कर जाता तो कोई एहतजाज भी नहीं करती थी, शायद इसलिए कि वो तंग आकर उसे छोड़ जाए। अल्लाह मियाँ की गाय का गुमान होता। लेकिन आजकल जो अंदाज ये लड़की अपना चुकी थी वो अलग थे, बहुत अलग। इतनी पुरएतमादी से वो उसके सामने बैठी थी। तुमने कॉफ़ी की ऑफ़र मौका मांगने के लिए की थी ना? मैं दोस्ती के लिए कर रही हूँ। मुझसे दोस्ती करोगे? एहसन हैरान से ज़्यादा शौक था। 2 कप चाय के 2 अलग जायके भी। एक में शुक्र ज़्यादा है, एक में कम। तुम पहचान लो, दोस्ती की पहली शर्त एतमाद है। वो इस कदर दोस्ताना अंदाज में बोली, कुछ पल के लिए एहसन कुछ बोल ना सका। पहली बार किसी ने दोस्ती की बात की है, बीवी बनने के बाद। शायद वो पहली थी। वो शक्कर वाली चाय उठा चुका था। नेहा ने आहिस्ते से कहा, बीवी बनना तो किस्मत थी, मगर दोस्त बनना पक्का वादा आपका इंतखाब होगा। उसे एहसास था, एहसन का, उसके जज्बात का। अगर ये सब कुछ उसके लिए होता तो वो खुद को आसमान की बुलंदियों पर तस्वर करती। एहसन खामोश हो गया। चंद लम्हे बाद, तुम्हें मुझसे अब शिकायत नहीं होती? नेहा ने हंसते हुए कहा, होती है मगर अब से दिल में रखूंगी, क्योंकि दोस्तों से शिकवे कम, मुस्कुराहटें ज्यादा बांटी जाती हैं। अगली सुबह एहसन जल्दी में दफ्तर जा रहा था, फिर रुक गया। क्या तुम नहीं चलोगी? दोस्ती का पहला असूल है दोस्तों को तंग नहीं करते। वो जगह आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। मैंने बहुत तंग कर लिया, अब बस। एहसन बगौर उसका चेहरा देखता रहा। वो जाने लगा। नेहा ने दरवाजे के पास जाकर कहा, 1 मिनट, तुम्हारी टाई की नॉट खराब है। एहसन रुका। नेहा ने आहिस्ता से टाई दुरुस्त की, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरी फीस? एहसन हैरान हुआ, फिर उसकी नाक पकड़कर खींची। दोस्तों की फीस नहीं होती, बस ख्याल रखा जाता है। तो तुम मेरी दोस्त हो तो तुम्हारा फर्ज है। नेहा हंसती। उनका रिश्ता बेहतरी की तरफ जा रहा था। एहसन ने एक पल को नजरें झुकाई और पहली बार कहा, शुक्रिया नेहा। दोस्ती में ऐसा भी कुछ नहीं होता। वो मुंह बनाकर बोली। घर का माहौल बेहतर होने लगा था। अर्शमान साहब का दिल मुतमईन हो गया था। रात को एहसन ने खाने के दौरान कहा, तुम बहुत बदल गई हो। नेहा ने नरमी से जवाब दिया, नहीं बदली, बस अब ये सीख लिया है कि रिश्ते तो तभी बचते हैं जब अना कम हो और दिल बड़ा। कभी कभी सोचता हूँ, अगर हम पहले दोस्त बन जाते। एहसन की आवाज़ मध्यम होगी, तो शायद तुम मुझे पहले सुन लेते। एहसन सुन तो नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखों की नमी, वो बहुत कुछ कह गई थी। नेहा की आंखों में हंसी और नमी दोनों थी। एहसन को शर्मिंदगी हुई। सुबह का वक्त था। एहसन जल्दी में तैयार हो रहा था। नेहा, मेरे मोज़े कहाँ हैं? हर रोज़ की मुसीबत हो गई है। नेहा ने हाथ में चाय का कप थामे पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, जिस दराज में कल रखे थे वही हैं। अगर दराज ने उन्हें छुपा लिया हो तो मैं दराज से लड़ने जा रही हूँ। ऐसे ने हल्की सी झुंझलाहट से दराज खोला और वाकई ही मोज़े वहीं थे। वो कुछ नहीं बोला, बस जेरे लब बुड़बुड़ाया, अच्छा मजाक करना आता है तुम्हें। नेहा ने हल्का सा मुस्कुराकर चाय का घूंट लिया। किचन में नेहा नाश्ता लगा रही थी। एहसन आया, मोबाइल पर कॉल सुन रहा था। यार मैं लेट हो जाऊंगा, तुम लोग लंच के बगैर चले जाना। नेहा ने सादा लहजे में कहा। पहले मोबाइल बीवी थी, अब ऑफिस। बीवियां कब ड्यूटी पर आती हैं? ऐसे ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में शरारत और आंखों के नीचे थकन का हल्का सा अक्स था। क्या मतलब? तुम जली कटी सुना रही हो? नेहा ने आंखें फैलाई जैसे कुछ नहीं हुआ। नहीं तो, बस लफ्जों को नमकीन करके पेश किया है, जायका अच्छा लगेगा। शाम को एहसन घर आया तो तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी। नेहा ने खामोशी से चाय का कप बढ़ाया, साथ एक दवा भी। ये दवा किस लिए? बेदिली, तलखी और थकन के लिए। कभी कभी दिल का इलाज दवा से भी हो जाता है। एहसन ने बगौर नेहा को देखा। पहली बार शायद उसने कुछ महसूस किया, मगर फौरन नजरें हटा ली। तुम बदली बदली लग रही हो। नेहा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। बदलना ना पड़े तो इंसान खुशकिस्मत होता है, मगर किस्मत हर किसी की कहाँ होती है। एक रात सोते हुए एहसन बेड पर लेटा था। नेहा किताब पढ़ रही थी। अचानक बोला, तुम्हें किताबों से इतना इश्क है? नेहा बगैर देखे जवाब दिया, किताबें जख्म तो नहीं देती, और हर बार नया कुछ सिखा देती हैं। एहसन थोड़ा चुप हो गया, फिर नेहा ने शरारती अंदाज में कहा, आप भी कभी कभी किताब बन जाएं, शायद मैं शौक से पढ़ लूं। एहसन ने हल्की हंसी दबाई और पहली बार खामोशी में एक नरम सी लहर दौड़ी। वो सारे घर में ढूंढ चुका था, बेचैन रूह को चैन नहीं आया, तो माँ से पूछ लिया, अम्मी वो नेहा वो घर पर नहीं है? एहसन की आवाज़ जैसे हलक में अटक गई हो। नहीं है? अर्शमान साहब की नजरें टीवी से हटी और आंखों का जाविया फौरन जासूस बन गया। कहाँ गई है? बाबा यानी जीनत बेगम के शौहर, जो अमूमन चुप रहते थे, आज पहली बार बकायदा अदालत के जज लगे। हमें क्या पता? अर्शमान साहब वैसे ही लापरवाही से बोले।
वो पता नहीं मोबाइल भी बंद जा रहा है, कोई मैसेज भी नहीं। एहसन सर को जा रहा था। जीनत बेगम ने मुस्कुराहट दबाई और अपने बेटे की परेशान सूरत देखकर बोल ही उठी, वो डेरा गाजी गई है, अपने वालिदैन को बहुत याद कर रही थी। क्यों? पेशानी पर शिकन उभरी। वो बताए बगैर कैसे जा सकती है? हाँ भाई, क्यों नहीं जा सकती? वो खुजल सा हो गया। अरशमान साहब ने नाक चढ़ाते हुए कहा, अब कोई उसे गुले यास्मीन की तरह रखता भी तो नहीं। रोज रोज की शक्ल देख देख कर उकता ना गई हो मेरी बेटी। अम्मी, ऐसे ने एहतजाज किया। अरे बस करो अरशमान, बेटे को और शर्मिंदा ना करो। जीनत बेगम ने संजीदा लहजे में कहा, फिर कुछ सोच कर बोली, वैसे एहसन, उस दिन तुमने उसकी चाय नहीं पी थी ना? हो सकता है गुस्से में चली गई हो। चाय? एहसन का मुंह खुल गया। अम्मी, वो चाय पीने की बात नहीं। हाँ, बात यह है कि तुम शोहर कम और बैंक ज्यादा बने फिरते हो। शोहर वो होता है जो बीवी के फिशल का खर्चा भी दे, खुशी से दे। अरशमान साहब ने उंगली उठाई जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब हो रहा हो। अम्मी, वो सच में नाराज हो गई है। एहसन ने सर पकड़ लिया। अब क्या घंटा घर पर चढ़कर ऐलान करेगी? इतनी भी मासूम नहीं लगती मुझे मेरी नेहा बहू। अब दोनों मुझे तंग कर रहे हैं ना? अम्मी प्लीज। एहसन ने गहरा सांस लिया। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, अब तो तुमको भी बीवी ही याद आएगी। जब घर पर थी तब तो तुम्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। अरशमान ने पीछे से आवाज लगाई। अब एहसन गाड़ी में बैठा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, आखिर वो गई क्यों है? एहसन नेहा के सामने खड़ा था। एक बार फिर उसका इस्तकबाल एक बॉल से हुआ था जो सीधा आकर उसके कंधे से टकरा गई थी। शुक्र है इस बार आंख बच गई है। एहसन ने जेरे लब मुस्कुराते हुए शुक्र अदा किया और साथ ही एक और शुक्र कि उसकी दोनों बहनें और वो छोटा सा भांजा आज ससुराल में नहीं थे, वरना मंजर कुछ और होता। वो अपने सास ससुर से रस्मी सलाम दुआ के बाद नेहा के कमरे की तरफ आया। क्लास लेने का बहाना, मगर दिल में सिर्फ एक ख्याल था नेहा का। नेहा, जो अब भी हैरत के आलम में दरवाजे पर खड़ी थी, उसे देखकर शर्मदर रह गई। तुम मुझे बताकर आ सकती थी। उसके लहजे में शिकवा नहीं, सिर्फ अपनापन था। नेहा की पलकें झपकना भूल गई। आप यहाँ? मुझे उम्मीद नहीं थी। वो कदम बढ़ाता आहिस्तगी से उसके करीब आया, अचानक आगे बढ़कर बड़े अपनेपन से उसे बाजू में समेट लिया। आइंदा अगर मुझे बताए बगैर आई तो अच्छा नहीं होगा मिसेस एहसन। नेहा का रंग एकदम बदला था। वो घबराकर पीछे हटी, मगर एहसन की गिरफ्त नरमी से मजबूत रही। ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज में घबराहट थी, मगर आंखों में एक अनकही चमक। एहसन ने शरारत से झुककर उसकी आंखों में झांका, जो अब तलब कर रहा हो अपनी बीवी से। कोई मसला है मिसेस एहसन? हम तो बस दोस्त हैं ना। नेहा ने हिचकिचाते हुए जुमला मुकम्मल किया। दोस्त बाद में, मियाँ बीवी पहले हैं। वो धीरे से कहता झुककर नेहा के गाल पर एक प्यार भरा बोसा सब कर गया। नेहा का चेहरा सुर्ख हो गया। बेख्तियार वो पलटी और शर्माती हुई कमरे से बाहर भाग गई। एहसन हंसता रहा। मोहब्बत जब शौकी से मिले तो जिंदगी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लगने लगती है। कमरे में हल्की मदम रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पार चांदनी नीचे कालीन पर बिखरी पड़ी थी। नेहा बेड पर विराजमान थी। एक तरफ तकिए तरतीब से रखे गए थे, जैसे छोटा सा किला बनाया हो। एहसन हाथ में कंबल लिए कमरे में दाखिल हुआ और नजरें बेड पर जमा दी। अरे वाह, लगता है आज जंग की पूरी तैयारी है। उसने हंसते हुए बेड की तरफ इशारा किया। नेहा ने जेरे लब मुस्कुराकर उसे घूरा। ये किला है, जंगी मोर्चा नहीं। बीवी के आराम का मोर्चा, और शोहर का आराम तुम्हारे लिए सोफा है, और अगर खराटे ज्यादा आए तो बालकोनी भी हाजिर। ऐसन ने मसनूई सदमे से सीने पर हाथ रखा। क्या मतलब? मैं तुम्हारा शोहर हूँ और शोहर को बीवी के साथ सोने का आईनी हक है। तुम बदला ले रही हो, और जब मैं पहले कमरे में आया था तब तो ये मनहूस सोफा यहाँ नहीं था। वो इसलिए मैंने अभी लगवाया है। आपको भी तो मालूम हो कि सोफे पर कैसे सोते हैं, और हक बाद में खराटे पहले। नेहा ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, पिछली बार मैं खराटों में फंसी रही थी, जैसे कोई वीडियो गेम का साउंड ट्रैक हो, और जब मैं सोई तो बाय चांस आपके करीब आ गई। लेकिन आपने क्या किया? मुझे इतना सुना दिया था। तो तुम चाहती हो कि मैं ये लंबी रात तन्हा सोफे पर गुजारूं? हाँ, ताकि तुम्हें अंदाजा हो सके कि सुकून की नींद सोना किसे कहते हैं। एहसन बेड के किनारे आ बैठा। सुनो नेहा, मेरी मोहब्बत का भी तो कुछ ख्याल करो। मोहब्बत दिन में अच्छी लगती है, रात को सिर्फ नींद। नेहा ने तकिए का एक और पट बढ़ाते हुए कहा, वाह, मोहब्बत को भी अब शिफ्ट लगा दी गई है। बिल्कुल, दिन की मोहब्बत, रात का सुकून, बीवी की नई पॉलिसी। एहसन ने मुंह बनाया, फिर मुस्कुराकर बोला, कमाल है, शादी हो गई है, दिल मिल गए है, खानदान खुश, बस एक बेड का मसला रह गया है। नेहा ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो तुम्हारे हिस्से का सुकून, और अगर नींद ना आए तो ख्वाबों में आ जाना, वहाँ बेड अलग नहीं होते। ऐसे ने कप लेते हुए सर झटका। तुम बीवी कम कोई हुकूमती वजीर ज्यादा लगती हो। रोज नया कानून, रोज नया फरमान। नेहा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, और तुम अवाम की तरह हो, मानते हो मगर मुंह बनाते हो।
ऐसा ने सोफे पर जाते हुए पीछे मुड़कर आखिरी बार बेड को हसरत से देखा था, फिर बोला, क्या बेड भी नेहा के नाम हो चुका है? नेहा ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, और कानून कहता है जो बीवी को सुकून दे वही मर्द है। एहसन महज हंस दिया। आखिर कब तक बचोगी मुझसे? नेहा ने जुबान चढ़ाई और चादर सर तक तान ली। 2 महीने बाद रात के 11 बज चुके थे। नेहा नरम से कॉटन का नाइट सूट पहने आईने के सामने बाल खोलते हुए सोचों में गुम थी। जब एहसन कमरे में दाखिल हुआ, संजीदा चेहरा, हल्की खफकी, सोना है या और ड्रामे करने हैं? वो बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, फिर नजरें चुराकर बोली, सो ही रही हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों ने बेड की अपनी अपनी साइड संभाली, एहसन का अंदाज कुछ बदला हुआ था। नेहा साइड पर लेटने ही वाली थी कि एहसन आहिस्ता से बोला, आज मैं इधर ही सोऊंगा। नेहा चौंकी। ये मेरी साइड है हमेशा से, वो जिद से बोली। अब वो एक ही बेड पर सोते थे क्योंकि घर आते ही एहसन सोफा कमरे से निकलवा चुका था। तो क्या हुआ, बीवी हो एडजस्ट करना सीखो, एहसन ने शरारत से कहा, मगर लहजा हनूस रोका था। नेहा ने तकिया उठाया और धीमे से उसके सीने पर मारा। जरा भी तमीज नहीं है? एहसन ने आंखें तंग की। बस अब तो हो गई तुम्हारी खैर, और अगले ही लम्हे दोनों के दरमियान तकिए की जंग छिड़ गई। तकिए उड़ रहे थे, हंसी की आवाजें कमरे में गूंजने लगी। कभी एहसन का तकिया नेहा के बालों में फंस जाता, कभी नेहा हंसते हुए खुद पर काबू न रख पाती। बस करो, सांस नहीं ली जा रही, वो हंसते हुए बोली। हार मान लो और अपनी साइड छोड़ दो। एहसन की आंखों में पहली बार शोखी थी। नेहा थकी थकी सी बोली, ठीक है तुम जीते, अब तो मुझे चैन से लेटने दो। वो पलटी और लेटने लगी, मगर ये क्या, दोनों एक ही तरफ लेट चुके थे। एहसन, तुम अभी भी यहीं क्यों हो? एहसन थोड़ा करीब होकर बोला, क्योंकि आज मुझे नींद सिर्फ यहीं आएगी, तुम्हारे पास। नेहा का दिल एक लम्हे को रुक सा गया था। शरारत, खफगी और हंसी के बाद ये एक जुमला, जैसे सब कुछ बदल गया हो। और अगर मैं मना करूं? वो आहिस्ता से बोली, सांस बेतरतीब। एहसन ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तो हलाल जबरदस्ती कर लूंगा, आखिर बीवी हो। नरमी, शरारत और दिल की गहराई में दबी हुई मोहब्बत ने पहली बार झांक कर दोनों के दरमियान एक नया बाब खोला। सुबह की रोशनी कमरे में आ चुकी थी। एहसन नींद के मजे ले रहा था जब एकदम उसके चेहरे पर ठंडा पानी पड़ा। पानी। वो उठकर बैठा, बाल बिखरे, चेहरा हैरत से भरा। नेहा के सामने हाथ में जग लिए खड़ी थी, फातिहाना अंदाज में। ये क्या बदतमीजी है? एहसन चीखा। नेहा ने मासूमियत से आंखें फैलाई। मुझे लगा तुम्हें आज जल्दी उठना है और तुम अलार्म पर तो जागते नहीं। एहसन ने निचला होंठ दांतों तले दबाया, फिर बोला, तुमने बदला लिया है ना, रात वाली तकिए वाली जंग का। नेहा ने कंधे उचकाए। बीवी हूँ, थोड़ा सा बदला तो बनता है। एहसन बेड से निकलते हुए बोला, अब तुम्हारी खैर नहीं। नेहा फौरन दरवाजे की तरफ लपकी, हंसती जा रही थी। पकड़ के दिखाओ। और फिर पूरे घर में एक छोटी सी शरारत भरी जंग शुरू होगी। कभी नेहा टीवी लॉन्च में जाती, छुपती, कभी किचन के पीछे से झांकती। एहसन दुपट्टे से फिसलती नेहा को पकड़ने की कोशिश करता, मगर हर बार वो बच निकलती। आखिरकार जब वो लाउंज के सोफे पर थक कर गिर गई, एहसन ने आकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अब तो भागोगी नहीं? डर तो मुझे भी है तुमसे, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। एहसन करीब होकर बोला, डरना तो अब मोहब्बत से है, क्योंकि मैं सच में तुम पर दिल हार बैठा हूँ। नेहा की मुस्कुराहट गहरी हुई। तो हार मान ली, पूरी जिंदगी के लिए? उसने उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया। वो बेड पर साथ बैठे थे। एहसन ने उस दाएं बाजू के घेरे में लिए हुए था। एक वक्त था तुम मुझसे डरती थी, नेहा मुस्कुराकर बोली, और आज भी कभी कभी लगता है कि कहीं ये सब ख्वाब ना हो। एहसन ने उसे करीब किया। ख्वाब अगर तुम हो तो मुझे सारी जिंदगी सोने दो, तुम्हारे साथ। नेहा ने सर उसके सीने पर रखा। मोहब्बत मिली है मुकम्मल, अब कुछ नहीं चाहिए। एहसन ने आखिरी बात आहिस्ता से कही, तुम मिली हो, यही सब कुछ है।